المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و سوگواران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت و مودت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. حاضرین محترم، چونکہ مقصد و مدعا عزاداری ہے اور اس کے لیے ماتمی حضرات موجود ہیں، لیکن مقدمہ ماتم کے طور پر میں چند جملے فضیلت کے اور چند جملے ہی آل محمد کے ساتھ امت کے سلوک پر آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں. آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ حدید کی 25 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے. لوہے کو نازل کیا ہے. حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ لوہا نازل نہیں ہوتا، لوہا زمین سے نکلتا ہے، لیکن یہ کوئی لوہا ہے جو نازل کیا گیا اور یہ لوہا جن کے لیے نازل کیا گیا انہی کے ہاتھ میں یہ کارآمد بھی ہوتا ہے مفید بھی ہوتا ہے. اور اس لوہے کی تعریف اللہ رب العزت فرما رہا ہے. بات لوہے کی کر رہا ہے لیکن تعریف کر رہا ہے لوہے کی. اس کا مطلب ہے صرف لوہا نہیں جو تعریف کر رہا ہے، لوہے کا ٹکڑا، دھات کا ایک ٹکڑا کہیں پڑا بھی ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ لوہے کی تعریف کر رہا ہے. منافع للناس، یہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس کا مطلب ہے جو اترے ہوئے لوہے سے فائدہ نہ اٹھائے وہ اللہ کی نظر میں انسان نہیں ہے. آپ جی سلامت ہیں. جو اترے ہوئے لوہے سے فائدہ نہ اٹھائے وہ اللہ کی نظر میں انسان نہیں. اور اللہ یہ بھی فرما رہا ہے میں نے لوہا نازل اس لیے کیا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ لوگوں کو دکھائے، لوگوں کے علم میں لائے کہ مَن يَنصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس کے رسولوں کی غیب میں چھپ چھپ کر مدد کرتا. اب جیسا بھی ماحول ہے، جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرمائیں وہیں آپ نے بیٹھنا ہے، اور دور بیٹھنے کی تکلیف آپ کو ہی گوارا کرنا پڑے گی. حافظ صاحب بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے جیسے پڑھا آپ نے سن لیا، لیکن میں جیسے اپنی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ کی آواز بھی اپنے آپ تک پہنچائے بغیر آپ سے رخصت نہیں ہوگا. جتنا دور بیٹھیں گے آپ کو ذرا زور سے بولنا پڑے گا، آپ کو اپنی آواز مجھ تک پہنچانا پڑے گی. چونکہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوہا میں نے انسانوں کے فائدے کے لیے نازل کیا، اور اللہ جو کچھ بھی نازل کرتا ہے فائدے کے لیے ہی نازل کرتا ہے، انسانوں کے لیے فائدہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ منافع ہی منافع دیتا ہے.
منفعت ہی منفعت. جو اللہ کا دین ہے وہ منافع ہی منافع ہے، اس میں خسارہ نہیں. وہ منافع کیا ہے؟ دنیا تلاش کر کے آ جائے، اگر منافع نہ ملے تو منافع ہم بتائیں. منافع وہ ہے کہ خرچ تھوڑا کیا جائے، مل زیادہ جائے. میں بہت زیادہ مقدمے میں آپ کو انتظار کروانے والا ہی نہیں. میں تو ایک فکرے میں نتیجہ عرض کر دوں گا کہ تھوڑا خرچ کیا جائے، مل زیادہ جائے. تھوڑا خرچ کرو تو مل زیادہ جائے. دنیا پوری کائنات کا چکر لگا کے آئے جرائی صاحب کہ کہاں منافع زیادہ ملتا ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارے ہاں منافع کتنا ہے. ہمارے ہاں منافع اتنا ہے کہ اگر آنکھ حسین کے غم میں مچھر کے پر کے برابر بھیگ جائے تو اللہ کہتا ہے کوثر تیرا. سلامت ہو زندگی. منافع ہے، یہ ہے منافع. منفعت ہی منفعت، منافع ہی منافع. جی بسم اللہ. خسارہ ہے ہی نہیں یہاں پہ، خسارہ ہے ہی. عام زندگی میں بندے روئے بندے چپ کرواتے ہیں، یہاں حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور رو لے، کیونکہ جتنا تو روئے گا تیرا فائدہ ہو. ورنہ دنیا کے ہر رونے میں نقصان، دنیا کے ہر رونے میں نقصان. میں پھر کہہ رہا ہوں، دنیا کے ہر رونے میں نقصان، شبیر کے غم میں رونے میں فائدہ. توجہ فرمائیے گا، شبیر کے غم میں رونے میں فائدہ ہے، منفعت ہے. اور یہ فائدہ تھوڑا تھوڑا نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے رو لو تو فائدہ اور ہے، کربلا چلے جاؤ تو فائدہ اور ہے. کربلا جانے کا فائدہ بھی اللہ نے بتا دیا. رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے کربلا کی ایک بار زیارت کی، اس نے ایسے 100 حج کیے جو میں محمد نے کیے ہیں. فائدہ ہی فائدہ. زیارت ایک بار، ثواب 100 حج کا. بلکہ خصائص الحسینیہ میں جناب جعفر شوستری صاحب لکھتے ہیں کہ صرف 100 حج نہیں، رسول نے فرمایا جتنے قدم کربلا کے لیے اٹھائے ہر قدم پہ حج کا ثواب. جتنے قدم کربلا کے لیے اٹھائے ہر قدم پر حج کا ثواب. جیسے ہی حائر حسینی میں داخل ہو، ایک فکرہ رہ گیا اور میرا دل چاہتا ہے میں وہ کہہ. پہلے لکھا کہ سرکار نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے چلتے. عجیب بات بھی کہنے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے چلتے. اس کے بعد رسول فرماتے ہیں اگر دھوپ کی شدت میں میرے بیٹے حسین کے مزار کی طرف چلے، جتنے پسینے کے قطرے نکلے اللہ پسینے کے ہر قطرے سے فرشتہ خلق کرتا. جا کے خصائص الحسینیہ دیکھ لیجئے، میں بغیر حوالے کے نہیں کہہ رہا. باری فکرہ میں کہہ گیا، میرے مجمع نے کمال تحمل سے، کمال بردباری سے، کمال برداشت سے، کمال صبر سے سن لیا. لیکن اس فکرے کو دہرا کے اس کا نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بندہ خاک کا پسینے کا قطرہ بہائے فرشتہ خلق ہو جاتا ہے. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، حسین اسے کہتے ہیں جس کی محبت میں خاک کا پسینہ نور بناتا ہے. یار جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے، مل کے بولو حیدری. حسین کہتے ہیں جس کی محبت میں خاک کا پسینہ نور بناتا. یعنی یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ. توجہ فرمائیے گا. خسارہ کا ہے. بہت جلدی جلدی گزر رہا ہوں اور تعمیل حکم بھی کرنا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اب میں مجمع کا امتحان لے لوں تھوڑا سا. جاگنا بیٹے، اگرچہ وقت زیادہ ہے لیکن آپ کو بات ماتم بھی کرنا ہے، پھر اس میں بھی جاگنا ہے. اور ماتم کہتے ہی اسے ہیں جو سوئے ہوئے کو جگا دیتا ہے. ماتم کہتی اسے جو خفتہ لوگوں کو جگاتا ہے، جو سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہے، اسے ماتم کہتے ہیں. ماتم میں بندہ سو ہی نہیں سکتا. نماز میں بندہ سو جاتا ہے، روزہ رکھ کے بندہ سو جاتا ہے. ماتم کرتا ہوا بندہ سو نہیں سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں، ماتم کرتا ہوا بندہ
सो नहीं सकता। भाई तवज्जो फरमाइएगा, मातम करता हुआ बंदा सो नहीं सकता। बंदे कहते चार दीवारी में मजलिस करवा लो, हमें कोई एतराज नहीं, गली में जुलूस ना आए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हाथ सीनों पे नहीं पड़ते, ये मातमी का हाथ यजीद के रुखसार पे पड़ता। अब ये क्या कहने आपके, हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। यार आपने कुछ माहौल बना लिया, अब मेरा दिल चाह रहा है मैं दो फिक्रे और कहूं। वलासर इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरी इंसानियत खसारे में, अक्सरियत खसारे में। इस फिक्रे पे इम्तहान लेना मैं, फिर बाबा जी कहेंगे तू आराम से पढ़ गया। वलासर इन्नल इंसान लफी खुस्र, अक्सरियत खसारे में है। क्यों? शिया थोड़े हैं। हाय 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 यार फिक्रा मैं क्या कहूं। वलासर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। अब वो ईमान वाले कौन है? जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है पता चल जाएगा ईमान वाला कौन कौन है। हम ईमान बताते नहीं, हम ईमान दिखाते हैं, क्योंकि नबी ने ईमान बताया नहीं था, ईमान दिखाया था। और नबियों के सुल्तान ने खंदक के मैदान में अपने खीमे में नेज़ा नस्ब होने के बाद, लोगों की खामोशी के बाद, अली के कदम उठते हुए देखकर अपने सामने बैठे हुए ईमान के दावेदारों से कहा था, ईमान के दावेदारों, ईमान वो जा रहा है। क्या बात है भैया, क्या कहने आप जी, बिस्मिल्लाह। ईमान के दावेदारों जियो, मुश्किल कुशाली हालत रवाली शेरे खुदाली जियो, हरी कूचा हरी गली अली अली बोल नमलाली बोल याली 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 नारा। आप जियो सकते, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। हमारे तो नारा लगाने वाले भी बेसुरे नहीं, हमारे तो नारे वाले भी सुरीले होते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, जिसके दिल में अली है वो खसारे में नहीं, न यहां न वहां, न इधर न उधर। तवज्जो फरमाइएगा, जिसके दिल में अली है वो खसारे में नहीं। चूंकि हुक्म है, मैं तामील हुक्म करने जा रहा हूं। जिसके दिल में अली है वो एक वक्त की रोटी को तरस जाए तो खसारे में नहीं, उसका बदन कट जाए तो खसारे में नहीं, उसका जिस्म खुल जाए तो खसारे में नहीं, अब्दुल्ला इब्न अफीफ की तरह आंखें दे दे तो खसारे में नहीं, मीसम की तरह जुबान कटवा दे तो खसारे में, खसारे में नहीं। हुजर बिन अदी की तरह खाल खिंचवा ले तो खसारे में नहीं। हुजर बिन अदी की जब ख्याल खिंच रही थी तो हुजर हंस रहे थे, तख्त पे बैठे हुए ने कहा था, तख्त पे बैठे हुए ने कहा था तेरी खाल खिंच रही है और तू हंस रहा है। कह रहा तू समझ रहा है कि मेरी खाल खिंच रही है, मेरे हर लम्स के अंदर अली की मोहब्बत का लुत्फ उतर रहा। शाबाश भाई, क्या कहने, हर लम्स के अंदर। मिल के बोलो या अली या अली या अली वाला बनना आसान है, रहना मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूं, अली वाला बनना आसान है, रहना मुश्किल है, क्योंकि अली वाला रहते हुए दुनिया में कुर्बानियां देना पड़ती। और कुर्बानी कहते ही उसे हैं जिसमें बंदा दे थोड़ा मिले ज्यादा। मैंने ये पिछले दिनों चूंकि जिलहज की ईद गुजरी है, बड़े बंदों ने जिलहज की ईद पे बातें की हैं, कुर्बानी हुई है मिना में, कुर्बानी जनाब इब्राहिम के बेटे के लिए उतरे हुए दुम्बे की याद में। वो तो दुम्बा उतरा था जनाब इब्राहिम के बेटे को बचाने के लिए, लेकिन इब्राहिम मुतमईन क्यों हो गए थे? मैं फिक्रा कहूं, जो बंदा अपनी खामोशी को समझता है कि मेरी खामोशी कायनात का कोई बंदा नहीं तोड़ सकता, वह अपनी जुबान को दहन के जिंदान का कैदी बना के बैठे। अगर आवाज यहां से बुलंद होकर वहां तक ना जाए जहां पर खामोश रहने वाले बैठे हैं, तो मैंने बतूल की चौखट के बाहर पड़ी हुई मिट्टी चाट के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। दुम्बे की वजह से इब्राहिम मुतमईन नहीं था। इस्माइल की गर्दन पे छुरी रख के बंधी हुई आंखों के साथ इब्राहिम ने कहीं हुसैन देख लिया। हाय हाय हाय, यार जिसे बात समझ आए वो हाथ उठाए। या अली या अली या अली। फिक्रा आपके मोबाइल की कॉल सुनने में रह गया कि इब्राहिम दुम्बा उतरने के
की वजह से मुतमईन नहीं थे, आंखों पे पट्टी थी। ख्वाब में देखा था कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूं और कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बाहुका, बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, बता तेरा क्या ख्याल है। तो बेटे ने क्या कहा था, काला या अबाते इफ़अल मा तुमर, बाबा जान वो कीजिए जिसका हुक्म हुआ, जिसका हुक्म हुआ वो कीजिए। जनाब इब्राहिम को ख्वाब में हुक्म हुआ, ख्वाब में आए हुए हुक्म पर बेटे की गर्दन पे छुरी रखने का मुनाफा क्या मिला। सोए हुए देखा, आंखों पे पट्टी बंधी थी, अल्लाह ने दुम्बा भी उतारा, खुली हुई आंखों के साथ हुसैन भी दिखाया। ये मुनाफा है, ये मुनाफा जो वहां से मिला। तो यहां मुनाफा ही मुनाफा है। आंख से आंसू बहाओ तो मुनाफा है, अपने बदन काट लो तो मुनाफा है। खसारा कब होता है, जब आले मोहम्मद को महदूद करो। महदूद आले मोहम्मद से महदूद अजर मिलेगा। फिर कह रहा हूं, महदूद आले मोहम्मद से महदूद अजर मिलेगा, ला महदूद आले मोहम्मद से। अच्छा, ये जो अकीदे चेक करने वाले बंदे हैं ना, शियों का अकीदा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन, बस यही अकीदा, अल्लाह अल्लाह है। और आजकल ये बिल आया और बिल में कहा गया है कि जब रसूल का नाम लेना है तो खत्मुल अंबिया कहना है। हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमें कहने की जरूरत इसलिए नहीं कि शीयत की तारीख पढ़ लो, शीयों में कभी कोई मिर्जा ही नहीं होता। आप लिए सलामत रहे, क्योंकि अली वलीउल्लाह खत्म नबूवत की वो मोहर है जो कादियानियत का रास्ता रोक लेती। और फिर अली महदूद मानोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं बिल्कुल करीब आ गया हूं, अली महदूद मानोगे, आपके हुक्म की तामील कर रहा हूं। जिंदगी महदूद मानोगे, अली महदूद मानोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ना अली का नुक्ता आगाज है ना अली का नुक्ता इख्तिताम है। अली खुद वो नुक्ता है। बाबा जी फिक्रा यही था, अली का नुक्ता आगाज नहीं, अली खुद नुक्ता है। उसी नुक्ते के गिर्द खिंचे हुए दायरे को अल्लाह इस्लाम कहता है। अली खुद नुक्ता, उसी नुक्ते के गिर्द खिंचे हुए। बस आखिरी मिसरे और फिक्रे हैं फजीलत के, इसके बाद दो चार जुमले मसाहिब के और आपको सलाम कर रहा हूं। अली वो नुक्ता है जिसके गिर्द खिंचे हुए दायरे को अल्लाह इस्लाम कहता है। उस नुक्ते का ना आगाज है ना इख्तिताम है। अभी तामील हुक्म के लिए मुझे कहा गया तो मैं कर देता हूं। अली का आगाज कब से है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तेरे रहवारे मारिफत को मैं हमेश करता हूं। अली कब से है? अनवार के कुलजम थे न मिट्टी के ये बरते, मस्जूद को सजदे थे न सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। आप ये हो, सलामत रहो। क्या कहने आप? अनवार के कुलजम थे ना मिट्टी के ये बर्फ, मस्जूद को सर। जाफरी साहब, हाफिज साहब ने पढ़ लिया, मैं भी पढ़ गया। आइंदा ये साउंड ना लगवाइए, मजलिस कहीं भी हो ये ना लगवाइए। साउंड वाला मुझसे नाराज हो तो अपना साउंड ठीक करके ले आए, शिया फिर लगवा लेंगे, लेकिन पहले ठीक करके लाए। अली को महदूद करके नहीं मानना। अनवार के कुलजम थे न मिट्टी के ये बरते, मस्जूद को सजदे थे न सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुदबा न निदा और न मंदूब की आंखें, जाजिब था न जज्बा था न मजजूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तो कई था न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज निहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर था न चुप थी न बया था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। क्या कहने आपके, आप लिए सलामत है, आपकी जिंदगी हो। आज बुलंद करो मेरे के बोलो हैदरी।
तलवार अली के लिए उतरी, अली ने ये तलवार अपने बेटों को दी। इसी तलवार से सफैन में लड़े थे अब्बास। यही वो तलवार है जिसने करबला में अली असगर की कब्र बनाई। जिसे जुल्फकार के बातें करने वाली तलवार, क्योंकि ये आज की शब गुजर जाएगी। 26 ज़िलहज की रात है। चार दिन रह गए। अभी हुसैन सफर में है। 6 दिन बाद शब्बीर करबला पहुंचे। बंदे जैसे गरीब समझते हैं, हुसैन वैसे गरीब नहीं। बड़ा सामान था शब्बीर के पास। हर शहजादी अपने अपने खीमे में, अपने अपने बिस्तर पर इबादत में मशगूल होती। सिर्फ एक शहजादी है जो अपने बिस्तर पर नहीं, शब्बीर के सीने पर। सलामत रहो जिनकी आवाज में बुलंद हुई। मखदूम आलमीन आपको सलामत रखे, आपकी हाय कबूल फरमाए। बानियान मजालिस के मरहूमीन को जवार रहमत मासूमीन में जगह अता फरमाए। जो अदादार हाजिर मालिक उनकी दुआएं कबूल फरमाए। खीमे वीरानों में लगते थे। वीरान जगहों पे शब्बीर खेमे लगवाते थे। लेकिन अली की बेटियां इत्मीनान से नमाज पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि मालूम था अब्बास है। दो तीन फिक्र कहूंगा, उस पर शबी आलम आएगी। कभी आपने मेरे मौला अब्बास का ताबूत नहीं देखा? ताबूत नहीं आता, आलम आता। ताबूत आता अगर शब्बीर अब्बास को उठा के खेमों में ले आता। जीते रहो भाई, सलामत मालिक की इबादत कबूल फरमाए। शहजादी कौनैन इस इबादत को कबूल फरमाए। मेरे लिए मौला अब्बास की शहादत पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मालिक की अता की हुई तौफीक से अगर आप कहें तो मैं एक फिक्रे में सैयदा उम्मुल बनीन के लाल की शहादत पढ़ सकता हूं, सिर्फ एक फिक्रे में। बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मस्तूरात भी होंगी। ये फिक्रा याद रहेगा, सारा मुहर्रम आपको रोना आता रहेगा। एक फिक्रे में उम्मुल बनीन के शहजादे की शहादत पढ़ सकता हूं, और वो फिक्रा ये है कि 28 रजब मगरिब की नमाज के बाद बतूल की बेटी का पहला कदम हुजरे से बाहर आया, अब्बास शहीद हो गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा, जिनकी आवाजें बुलंद हो। शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे। दो फिक्रे में सखी अब्बास की शहादत तो नहीं मैं कहता इसे, मौला के मसाइब के दो फिक्रे कहूं, तो उसके बाद अलम आएगा। बाजू कट गए मेरे मौला अब्बास के। क्या कह रहा हूं? नहीं समझे? नहीं? तेरे रोने का सामान पैदा कर दूं? तो फैल बिन नौफल हरामजादे ने झाड़ियों के पीछे से पहला वार किया, अली की बेटी की चादर लुट गई। आए करके रोना, अभी से तैयारी कर लो मुहर्रम की। दूसरा वार हुआ, अब्बास की जुबान से निकला वाह हिजाबा, दोनों बाजू कट गए।
मश्क सामने घोड़े पे थी। अब्बास झुके घोड़े से, अब्बास ने मश्क को दांतों के साथ उठाया, मश्क सीने पे लटक रही थी कि अली असगर के कातिल ने झाड़ियों में छुप के मश्क पे तीर मारा। अली असगर को बाद में मारा, अली असगर के पानी पे पहले मारा। मश्क पे तीर मारा, तीर लगा मश्क पे, गुजरा सीने से, पुष्ट से निकला। तीर निकाल देते अब्बास, मगर तीर निकालने के लिए थी हाथों की जरूरत। अब अब्बास ने अपने बाएं पैर की ठोकर से घोड़े का रुख यजीद की फौज की तरफ कर दिया। बिल्कुल फौज के दरमियान आ गया घोड़ा। अल्लाह करे मैं लफ्ज समझा सकूं, लेकिन अब्बास के चेहरे पे जलाल इतना था। यजीद के सिपाही दूर दूर खड़े थे। अब्बास आवाज दे के कहते हैं मेरे हाथ कट गए हैं। अब डरते क्यों हो? आओ, पत्थर है तो मुझे मारो, तीर है तो मुझे मारो, तलवार है तो मुझे मारो, नेजा है तो मुझे मारो, रेत फेंकनी है तो मुझ पे फेंको, जितना मारना है मुझे मारो। उसे ना मारना, वो बतूल का बेटा है। सैयदा आपको सलामत रखे, बाबा जी मालिक आपका गिरिया कबूल फरमाए। जितना मारना है मुझे मारो, लेकिन उसे ना मारना, वो बतूल का बेटा है। फिर जिसके हाथ में तीर था उसने तीर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। बताओ 9 लाख फौज ने अब्बास को कितना मारा? सारी जिंदगी का दुख बन जाएगा ये जुमला अगर तेरी समझ में आ गया। 9 लाख फौज ने 34 साल के अब्बास को इतना मारा कि फिर 12 मुहर्रम को कब्र इतनी बनी जितनी असगर की थी। सैयदा आपको सलामत रखे, शहजादी आपकी हाय कबूल फरमाए। यार जिनकी आवाजें बुलंद हो गई, बहुत मारा अब्बास को। अब्बास दीन से उतरे, हुसैन आ गए। अब यहां रुक के मैं एक लफ्ज कहूंगा। शब्बीर आए, शब्बीर आके आवाज देके कहते हैं अब्बास अली अकबर के बाद भी मुझ में इतनी ताकत है, मैं तुम्हें खय्याम में ले जाऊं। आवाज देके मौला अब्बास फरमाते हैं सिर्फ एक बात बता दे, मुझे आप खय्याम में ले जाएंगे, आपको कौन ले जाएगा? और तेरी समझ पे कुर्बान, मुझे तो आप ले जाएंगे खय्याम में, मेरे बाद आपको कौन ले जाएगा? अब्बास कोई नहीं फरमाया, फिर मुझे भी नहीं। शब्बीर ने एक फिक्रा कहा। शब्बीर आवाज देके कहते हैं अब्बास तू बाबुल हवाइज है ना? जी मौला मैं बाबुल हवाइज। अब्बास बाबुल हवाइज किसे कहते हैं? मौला उसे कहते हैं जिसके दरवाजे पे लोग मांगने आए, सवाल पूरे हो जाए। अब्बास बाबुल हवाइज के पास सवाली आते हैं ना? जी बादशाह सवाली आते हैं। अब्बास तेरे दरवाजे पे पहला सवाली आ गया। आए यार, जिसे समझ आएगी वो मातम घर जाके भी करेगा। अब्बास तेरे दरवाजे पे पहला सवाली आ गया। मौला कौन? फरमाया मैं गरीब हुसैन। मौला मैं क्या दे सकता हूं? फरमाया तुम सब कुछ दे सकते हो। मौला क्या दे सकता हूं? फरमाया एक बार मुझे मेरे असली रिश्ते की खैरात दे दे। सारी जिंदगी खुद को गुलाम कहते रहे, एक बार मुझे भाई कह के बोला। अब्बास आवाज दे के कहते मौला मैं भाई कह लेता, लेकिन मदीने से चलते हुए अम्मा उम्मुल बनीन ने कब्र रसूल पे हाथ रखवा के वादा लिया था, खुद को नौकर कहलवाना है, खुद को भाई नहीं कहलवाना। जैसे कहा ना अम्मा उम्मुल बनीन ने वादा लिया था, करीब से टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखे हुए मोहम्मद की बेटी की आवाज आई, अब्बास कुर्ते में सीती रही। कर बात यार जिसके पास हाथ है, बस अगले फिक्रे पे अलग ले आना। अब्बास कुर्ते में सीती रही और मां तेरी उम्मुल बनीन है, मैं फातिमा होके हुक्म देती हूं क्या हुसैन को भाई। बस अदादारो लफ्ज सुनना। अब्बास ने पता कैसे सलाम किया शब्बीर को? क्योंकि पहले जब हुसैन आते थे ना, अब्बास खड़े हो जाते थे, बाबा जी दोनों हाथ पेशानी पे रखते और कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। आज सलाम करने के लिए हाथ नहीं थे। बताओ अब्बास ने सलाम कैसे किया? अगर तेरा सीना बर्दाश्त कर सके, अब्बास ने एक बार शब्बीर के जानों से सर उठाया, करबला की गर्म रेत पे पहली बार सर मारा, आवाज दे के कहता अस्सलामु अलैका या अखी अल गरीब, ऐ मेरे गरीब भाई मेरा सलाम हो। इधर कहा है मेरे गरीब भाई मेरा सलाम हो, उधर
کنات ہٹ گئی، ادھر کنات ہٹی کہ خیمے کے پردے کے پیچھے سے ایک شہزادی کی آواز آئی، عباس مجھے بھی سفر کے لیے سامان مہیا کرتا جا، کہ ایک بار عباس کا رخ پھر گیا خیام کی طرف، آواز دے کے کہتے السلام علیکہ یا اختی المسافرہ، السلام علیکہ یا اختی الاسیرہ، اے میری شام کی اسیرہ بہن، ماتم